Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had discussed your 7th unit, second lesson, Gulliver's Travels exercise up to the page number 121. Now today we are going to start from page number 122. And your first exercise is, now complete the following, use the word given in the box. सो इसका यूज़ करके आपको ये कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट वन है एज लाइट एज अ फीदर. फीदर मीन्स पंख होता है ना, जो बर्ड्स होते हैं उनका पंख. तो एज लाइट एज फीदर मतलब कि फीदर की तरह लाइट. नेक्स्ट है एज स्लो एज टॉर्टोइस. नेक्स्ट है एज स्वीट एज हनी, एज वाइट एज स्नो, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, as black as night, as red as a rose, as warm as a toast, and as gentle as breeze. Okay, now use the above expression to complete the following sentence. First one is, the old man's hair is as white as snow, his feet was as cold as ice. The newspaper boy was as slow as tortoise in delivering the paper. Next है, I felt as light as feather. As feather, as light as feather, यहाँ पे आ जाएगा. Okay, feather after exercise. Next, create your own expression for the following. Work in pairs. As tall as Qutub Minar, as fast as चीतास. सबसे फास्ट कौन सा एनिमल्स होता है? चीता. नेक्स्ट है एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, एज एंग्री एज बुल, एज टाइनी एज एंट एंड एज ब्रेव एज टाइगर. There are many reasons why some things happens. For example, events and reasons. Gullivers could not climb the fence because his this have no meanings, so we will not discuss. Now look at the picture and discuss the group why the following events happen. You may find more than one reason for each of them. Okay, so first one, आपको पिक्चर को देख के फिर आपको बताना है कि ये क्यों हुआ है. प्ले कैंसल्ड हुआ है. सो द प्ले वॉज कैंसल्ड बिकॉज वन ऑफ द एक्टर मेट विथ ऑन अन एक्सीडेंट. ओके, तो प्ले कैंसिल हुआ है क्योंकि उसमें से कोई ऐसा एक्टर है जो उसका एक्सीडेंट हुआ है. ओके, दूसरा कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट है दे आर वॉकिंग बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हायर रिक्शो. ओके, तो उनको रिक्शा हायर नहीं करनी है इसलिए वो चल रहे हैं. दूसरा कोई भी रीज़न हो सकता है. फॉर एक्सरसाइज भी चल सकते हैं. ओके, एक्सरसाइज के लिए भी. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट. Look at the following example. I was trying to climb over the fence when the giant show me. The farmer's wife was stroking the cat when her 1-year-old son entered. Both the action were in the past. When the first one was going on in the past, the second one happened. ओके, तो ये दोनों ही जो एक्शन है वो कैसी है, तो एक फास्ट में हो रही है फर्स्ट वन, तो दूसरी क्या है, सेकंड वन चल रही है, सॉरी, तो दूसरी हो रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड राइट कंप्लीट सेंटेंस इन द लाइन्स बिलो. ओके, तो ये आपको क्या करना है, जो ये लाइन्स है उनको मैच करना है और फिर यहाँ पे आपको लिखना है. सो फर्स्ट वन है एज आई वॉज राइटिंग अ लेटर माई, सॉरी इसमें से क्या आएगा, he noticed a lovely butterfly, he fell off the ladder, met Arun, my pen ran out. तो क्या आएगा, my pen ran out. तो I was writing a letter when my pen ran out. ओके, तो इसमें आपको कंजक्शन का यूज़ करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. नेक्स्ट है पॉल वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो when he noticed
he noticed a lovely butterfly. Next है, he was looking for his dog. When I met Arun, he was looking for his dog. Okay. Next है, I was just completing the last answer. Ma'am said stop waiting. Stop writing, sorry. Next है, Amit was doing his homework when the light went out. And next one is, my mother was cooking dinner when the bell rang. ओके, तो यहाँ पे भी जगह पे लिख देना है जो ये माई मदर वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द लाइट व्हेन द बेल rang. Okay, now please note the something, the order of the sentence changes. Not that something, the order of the sentence changing. Okay, तो इसमें ये नोट करना है कि कहीं पे ऑर्डर चेंज हुआ है. ओके, सेंटेंस का. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग suitably. I was sitting in the taxi yesterday when I saw a lady calling me. He was cleaning out his cupboard when he came across the diary page. Next day, I was running in a fast when dog ran out onto the road and students were talking loudly when the teacher walked into the room. Okay, now third one is, when we compare two things, peoples, we add er or more to describing word. Okay, तो ये क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री है. जब हम दो चीज़ को कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जो मेन पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें er लगाते हैं या फिर मोर लगाते आगे. ओके, व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, पीपल, वी एड est और मोस्ट. ये सुपरलेटिव डिग्री है टू द डिस्क्राइब वर्ड्स. नाउ look at the following example when first two are compared and when all three are compared. Okay, so first one is fast, which is positive degree. Next one is faster, which is comparative degree, and third one is faster, which is superlative degree. So the sailboat is fast, the car is faster than the sailboat. तो इसमें कंपैरिजन हुआ दो चीज़ में, कार और सेल बोट के बीच में. नाउ द एरोप्लेन इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, और उसका कंपैरिजन सब में हुआ. सो जब दो चीज़ की कंपैरिजन होगी तब कंपैरेटिव डिग्री, एंड दो से ज़्यादा चीज़ की कंपैरिजन होगी तब सुपरलेटिव डिग्री. डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट. हिटिंग टारगेट इज़ डिफ़िकल्ट. Juggling cap is more difficult than hitting a target, and doing complicated magic trick is the most difficult of them all. Now complete the following in the same way using the word easy and strong. Skipping is easy, jumping is easier than skipping, and walking is easiest of all. The dog is strong, the horse is stronger, and elephant is strongest. Now complete the following in the same way using the word juicy or exciting. The order may vary according to your choice. Apple, apple is juicy. Orange, sugar cane is juicier than apple, means orange is juicier than apple, and orange is juiciest all of them. ओके, तो शुगर ऑरेंज है सबसे जूसीएस्ट होता है एंड शुगर कैन एप्पल से ज़्यादा जूसर होता है एंड एप्पल इज जूसली. नेक्स्ट है रॉक क्लाइंबिंग, क्लीन स्किंग
स्कीनिंग एंड रिवर राफ्टिंग. तो रॉक क्लाइंबिंग एक्साइटिंग, skiing is more exciting than river climbing, and river rafting is most exciting. इसमें मोस्ट आएगा, इसमें मोर आएगा और इसमें एक्साइटिंग आएगा. नाउ करेक्ट द यूज ऑफ द डिस्क्राइबिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. दिस इज द simpler problem of them all. Which is the lightest of the two parcels, and he is cleverer than I am. I like this the best of the two, and the flood because better as the rain increased. ओके, तो इसमें क्या है, सारी जो एक्सरसाइज है उसमें कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री की बात की है, जो आप ग्रामर में पढ़ चुके हो. नाउ लेट्स सी ऑन योर नेक्स्ट पेज. Punctuate the following sentence. Next Wednesday, my sister Meeta is going to join the State Bank of India. तो इसमें पंक्चुएशन करना है, तो उसमें क्या क्या आएगा. जो देखो नेक्स्ट वेंसडे, उसमें वेनसडे है, उसमें नेक्स्ट का एन कैपिटल आएगा, वेनसडे में डब्ल्यू कैपिटल आएगा, सिस्टर मीता में एम कैपिटल आएगा. इज गोइंग टू ज्वाइन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंडिया का आई कैपिटल आएगा. नेक्स्ट है, इसमें द कैपिटल आएगा, उसमें बैंक्स इट्स टेल्स व्हेन इट्स प्लीज्ड बट अ कैट वेव्स इट्स टेल्स व्हेन इट्स एंग्री. ओके, तो इसमें ओनली द डॉग है, उसमें द कैपिटल आएगा. नेक्स्ट है, व्हेन आई वेंट फिशिंग आई कॉट एन ओल्ड शू, अ प्लास्टिक बैग एंड अ बेड कोट. ओके, तो व्हेन का डब्ल्यू कैपिटल, फिर सेमी कॉलम, फिर आई वेंट फिनिशिंग आई कॉट ऑन ओल्ड शूज़, उसके बाद सेमी कॉलम, देन प्लास्टिक बैग, देन सेमी कॉलम, नॉट सेमी कॉलम बिकॉज एंड आ रहा है ना बीच में. नेक्स्ट है, शी फेड द बेबी, वॉश द डिशेज, पुट द लाइट्स ऑफ एंड वेंट टू स्लीप. ओके, तो शी फेड द बेबी, नेक्स्ट सेमी कॉलम, देन वॉश द डिशेज, then semicolon and put lights off and went to sleep. Okay, then wasn't Tim born on the 26th January 1989. okay, तो wasn't का W क्या आएगा, कैपिटल आएगा, एंड जनवरी का J कैपिटल आएगा. ओके, एंड यहाँ पे सेमीकोलम आएगा. नेक्स्ट है, ओह नो, उसके बाद क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, एंड द बस हैज़ गॉन. ओके, बस यही. नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट अ जायंट ट्री, रेडवुड ट्री ऑफ कैलिफोर्निया. अ जायंट बर्ड, तो ऑस्ट्रिच, एंड अ जायंट लैंड एनिमल, तो एलिफेंट. अ जायंट वाटर क्रिएचर, ब्लू व्हेल, एंड अ जायंट रिप्टाइल, तो क्रोकोडाइल, एंड अ जायंट एरोप्लेन, तो एंटोनॉन ऑन 225. ओके, नाउ you woke up one morning and found yourself in the land of draft. Write a paragraph describing your experience there and how you go back home finally. You may begin like this. ओके, तो एक दिन आप उठे और किसी अलग दुनिया में पहुंच गए, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे वो उसको. ओके, तो आपको इससे स्टार्ट करना है. एवरीथिंग अराउंड मी लुक्ड डिफरेंट. Men and women were so tiny and children, they appeared as if they were big dot on the ground. All the houses were only 1.5 feet height. ओके, तो हाइट में बहुत छोटे थे और जो लोग थे वो भी बहुत टाइनी थे. और आई वॉज सरप्राइज टू सी दैम ऑल बट equally happy to find that these people were so lent to me and they helped me to go home back. Okay,
नाउ जॉक्स दिया है, जॉक है, व्हाट डिड द मॉन्स्टर ईट आफ्टर द डेंटिस्ट पुल्ड इट्स टूथ, द डेंटिस्ट। तो अगर डेंटिस्ट कोई जायंट है उसके दांत निकाल देगा तो वो क्या खाएगा, तो वो डेंटिस्ट को ही खाएगा। जॉक है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 7th यूनिट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका 8 यूनिट उसकी फर्स्ट पोएम नोबडीज फ्रेंड देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।